Hello students, welcome back. This is Ihsan Ali Asamadi and thanks for subscribing my channel and thanks for your love and support. Students start करेंगे with महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथ्स पार्ट 2 ज्योमेट्री. सो इस सब्जेक्ट में टोटल वी हैव 7 चैप्टर्स. दैट इज चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी, चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थियरम, चैप्टर नंबर 3 सर्कल, देन वी हैव ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, then we have coordinate geometry, then the second last chapter is trigonometry and the last one is mensuration. So let us start one by one all the chapters and we will try to complete the whole syllabus. So start करते with first chapter, that is similarity, and the weightage of this chapter is 10 marks. So students, इस chapter को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है. Part 1 that is pre-similarity and part 2 that is similarity. So pre-similarity, so practice set 1.1 and practice set 1.2 are based on pre-similarity. So in practice set 1.1 we will study ratio of areas of triangles, ratios of areas of triangles, and in practice set 1.2 we will study basic proportionality theorem, that is BPT, then converse of BPT, angle bisector theorem and converse of angle bisector theorem, and property of three parallel lines and their transversal. Then we'll jump to next exercise, that is practice set 1.3, and in practice set 1.3 we will study similar triangles and test of similarities of triangles, and the last practice set, that is 1.4, which is based on areas of similar triangles. So let us continue one by one each practice set. So start करते with our first practice set, that is ratios of areas of triangles. So continue करते with lecture 1 and that is ratio of areas of two triangles. So areas of two triangles की बात कर रहे. So area of a triangle लेते. So what is the formula for area of triangle? So area of triangle is half into base into height. So let me take one triangle. Now here in this particular case, let me name it as triangle ABC. So here area of triangle ABC will be half into base. What is the base of this triangle? इस triangle का base क्या है? So base BC is my base, so it will be BC. And what is my height? Height क्या रहेगी? So how to find the height of a triangle? सो बिफोर वी फाइंड दी हाइट, सबसे पहले आप बेस फाइंड करो, फिर उस बेस के ओपोजिट वर्टेक्स, मींस उस ट्रायंगल का बेस है BC, उसका जो ओपोजिट वर्टेक्स होता है, सो BC का जो ओपोजिट वर्टेक्स है इट इज A. सो A से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो. सो दिस इज माई हाइट, लेट मी नेम इट एज AD. सो AD इज माई हाइट. सो आई होप हाउ टू फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल. सबसे पहले बेस फाइंड करना है और उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, वो हो जाएगी आपकी हाइट. सो लेट मी नेम इट एज माय इक्वेशन नंबर 1. अब एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं हम. दो ट्रायंगल कंसिडर करना है बिकॉज वी आर स्टडिंग द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स. सो लेट मी कंसिडर वन मोर ट्रायंगल. So this is my second triangle, let me name it as P, Q and R. So जो first triangle था मेरा वो एक acute angled triangle था, जो second triangle है मेरा वो एक obtuse angled triangle है. So start करते हैं. In this particular case area of triangle PQR is equal to half into base. What is the base of this triangle? Base क्या है? So QR is my base. So QR इंटू हाइट. हाइट क्या है इस ट्रायंगल की? हाउ टू फाइंड द हाइट? हमने प्रीवियस एक्यूट एंगल ट्रायंगल में देखा हाउ टू फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल. सबसे पहले आपको बेस फाइंड करना है, फिर उसके ओपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है. सेम हम फॉलो यहां करेंगे. सो क्यू आर इज माई बेस. सो इस बेस का ओपोजिट वर्टेक्स से क्यू पी, इस पी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे. And I will extend QR. So PQR and this becomes PS.
सो पी एस मेरी हाइट है एंड विल पुट अ परपेंडिकुलर साइन. सो ये केस में पी एस मेरी हाइट है एंड लेट मी नेम इट एज माई इक्वेशन नंबर 2. सो हमने दो ट्रायंगल लिए, एक मैंने एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल लिया और दूसरा मैंने एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लिया. दोनों का एरिया फाइंड किया. अब फर्दर हमें क्या करना है, हमें करना है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स. सो लेट मी टेक द रेशियो. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, लेट मी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दैट इज हाफ into BC into AD upon half into QR into PS. कैंसिल करते, जो भी पार्ट कैंसिल होगा. सो फर्दर आई विल गेट BC into AD upon QR into PS. This is the value for ratio of areas of two triangles. So I hope this is clear to you all. Okay. सो बहुत ही सिंपल था. हमने फाइंड किया कि जब दो ट्रायंगल्स होगा उसका रेशियो, एरिया का रेशियो कैसे फाइंड करते हैं. नाउ सपोज इंस्टेड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इफ आई से ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2, अगर ए बी सी के जगह पे अगर मैं ट्रायंगल 1 बोलता हूं और ट्रायंगल पी क्यू आर की जगह इफ आई से ट्रायंगल 2, देन दी area will be A1 and A2 and the base will become B1 B2 and the corresponding height will become H1 and H2. So let us substitute. So this will become A1 upon A2 equal to, so the base, ये मेरा base है BC, this will become B1 and the corresponding height will become H1 upon B2 into H2, and this is our first formula of our practice set 1.1. I hope, और इसको हमें याद रखना है. सो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, एंड दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ दिस एक्सरसाइज विच वी विल बी यूजिंग इन आवर कमिंग सम्स. सो जब भी आप ये फॉर्मूला यूज करोगे आपको रीजन मेंशन करना है. सो वो रीजन क्या है, बहुत ही सिंपल है. फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू कैन मेक आउट. सो कैसे लिखेंगे रीजन, कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, the ratio of areas of two triangles is equal to the ratio of areas of two triangles is equal to the ratio of product ऑफ, किसका प्रोडक्ट है, बेसस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट, देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स. सो दिस इज द रीजन जो आपको मेंशन करना है whenever you use this formula. So A1 upon A2 equal to B1 into H1 upon B2 into H2, and this is the first formula of this practice set and this chapter, and you need to mention this formula. So based on this formula हमारे पास 3 conditions है. टेक्स्ट बुक में 2 कंडीशन मेंशन की गई है, हम 3 कंडीशंस लेते हैं. कंडीशन 1 क्या है, कौन सी 3 अलग अलग पॉसिबिलिटीज है. द फर्स्ट वन इज हाइट्स आर इक्वल. हाइट्स आर इक्वल. सपोज 2 ट्रायंगल्स है, जब हम सम्स करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. सपोज 2 ट्रायंगल्स है एंड दोनों ट्रायंगल्स के हाइट्स इक्वल है. हाँ, H1 इज इक्वल टू H2 है ना. एक ट्रायंगल के हाइट को मैंने H1 लिया है एंड दूसरे को H2 लिया हुआ है और ये दोनों इक्वल है. सो H1 इक्वल टू H2. सो क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला में क्या चेंजेस होगा. सो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 इंटू H1, न्यूमरेटर को मैंने एज इट इज लिखा है B1 इंटू H1 एंड डिनोमिनेटर को B2 इंटू, इंस्टेड ऑफ H2, इन प्लेस ऑफ H2 कैन आई राइट H1. सी फ्रॉम हियर H1 इज इक्वल टू H1 एंड H2 इक्वल है.
सो इन प्लेस ऑफ H2 मैंने H1 लिख दिया एंड देयरफॉर इट विल गेट रेड्यूस्ड एंड ये हो जाएगा फाइनली A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2। सो ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला हो गया इस फर्स्ट एक्सरसाइज का। एंड वेन एवर यू यूज दिस फॉर्मूला आपको मेंशन करना है कि हाइट्स आर इक्वल, हेंस एरियाज proportional to bases। so this is the first condition जिसमें मेरे अगर heights equal है then the ratio of areas of two triangles is equal to the ratio of their corresponding bases। so continue करते with our second condition जिसमें base equal हो गए, bases are equal। so this will become B1 equal to B2A। so now again क्या चेंजेस होगा इस फॉर्मूला में, so A1 upon A2 is equal to B1 into H1। न्यूमरेटर को मैंने एज इट इज लिखा है, प्रीवियस केस में भी न्यूमरेटर को एज इट इज लिखा था। अब डिनोमिनेटर की बारी आई, B2 इन प्लेस ऑफ B2 कैन आई राइट B1, इन प्लेस ऑफ B2 आई कैन राइट B1, so B1 into H2। सो फर्दर अगर इसको हम सॉल्व करें तो कट हो सकता है, सो B1 विल गेट कैंसल्ड एंड देयरफॉर A1 अपॉन A2 बिकम्स H1 अपॉन H2 एंड दिस इज माय थर्ड फॉर्मूला ऑफ दिस फर्स्ट एक्सरसाइज। सो मेरा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2। सो रीजन मेंशन करना है, so here A1 upon A2 equal to H1 upon H2, that is the ratio of areas of two triangles having equal bases is equal to the ratio of their corresponding heights। रीजन मेंशन कर देते हैं, यहां पे हमने रीजन क्या लिखा था, heights are equal hence areas proportional to bases। ये केस में क्या आएगा, bases are equal hence areas proportional to heights। bases are equal hence areas proportional to heights। so यहां पे हमारा कंडीशन 2 फिनिश होता है, लास्ट कंडीशन की तरफ जाते हैं एंड bases are equal, heights are equal। अब क्या होगा जब बेस और हाइट दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो bases and heights are equal। so जब बेस एंड हाइट्स दोनों इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, so H1 इक्वल टू H2 एंड B1 इक्वल टू B2। सो ये केस में देयरफॉर A1 अपॉन A2 इक्वल टू, न्यूमरेटर को मैं एज इट इज लिख देता हूं, सो B1 इंटू H1 अपॉन, नाउ इन प्लेस ऑफ B2 can I write B1? Yes. And in place of H2 can I write H1? Yes. So this ये further cut हो जाएगा and therefore this will become A1 upon A2 is equal to 1 upon 1 and therefore if I cross multiply over here so हो जाएगा A1 equal to A2 and this is our फाइनल फॉर्मूला। सो स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में टोटल वी विल बी डीलिंग विथ 4 फॉर्मूलाज। द फर्स्ट फॉर्मूला इज A1 upon A2, the ratios of areas of two triangles, that is A1 upon A2 equal to B1 into H1 upon B2 into H2। और रीजन आपको मेंशन करना है, the ratio of areas of two triangles is equal to the ratio of product of bases and their corresponding heights। The second one is A1 upon A2 equal to B1 upon B2, that is when the heights are equal, then the ratio of the areas is proportional to bases। so heights are equal hence areas proportional to bases। the second condition is when bases are equal, so A1 upon A2 equal to H1 upon H2 and reason mention करना है, bases are equal hence areas proportional to heights। and the last one, that is condition 3, when base and height both are equal, suppose two triangles है और दोनों के base and height दोनों equal है, तो दोनों का एरिया सेम हो जाता है। सो ये केस में A1 इक्वल टू A2, सो दैट ऑल्सो विल मेंशन सिंस द बेसेस एंड हाइट्स आर इक्वल, हेंस एरियाज ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल।
सो आई होप आपको क्लियर है एवरीथिंग. So this we will be required in our coming practice set 1.1. So students, before we continue with practice set 1.1, सबसे पहले देख लेते हैं how to identify या how to draw the bases and heights. So start करते हैं concept of bases and heights. So to understand the base and height, मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल्स लिए हैं. एक है हमारा acute angled triangle एंड दूसरा है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल. सो स्टार्ट करते हैं विथ अवर फर्स्ट ट्रायंगल जो है मेरा एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल. स्टार्ट करते हैं. सो प्रीवियस केस में जब मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया उस वक्त द बेस ऑफ अ ट्रायंगल मैंने नीचे वाले बेस साइड को लिया था. ओके बट एक बात याद रखना है हमें कि जो बेस होता है, सपोज अगर मैं बोलूँ ट्रायंगल ए बी सी, तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में सिर्फ बीसी बेस नहीं होता. हमें एक चीज याद रखनी है कि एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल कैन बी द बेस. एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल कैन बी द बेस. ये चीज हमें याद रखनी है कि ट्रायंगल के कोई भी साइड को आप बेस ले सकते हो. सो इस पर्टिकुलर केस में बीसी इज नॉट द ओनली बेस. आई कैन से AC भी मेरा बेस पॉसिबल है एंड AB भी बेस पॉसिबल है. सो 3 बेसेस आर पॉसिबल. द फर्स्ट वन इज BC, सेकेंड वन इज AC एंड द थर्ड वन इज AB. सो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि BC बेस कब होगा, BC बेस कब होगा. सो यू कैन टेक BC एज बेस जब उसके करस्पॉन्डिंग हाइट आप लोगे उसके ओपोजिट वर्टेक्स से. सो ट्रायंगल ABC में BC मेरा बेस कब होगा, जब उसके ओपोजिट वर्टेक्स A से आप अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तब. सो इफ आई ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन ओवर हियर एंड आई नेम इट एज AD. सो BC बेस कब होगा, जब उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट AD होगी. तो कैसे हाइट को प्लॉट करना है, उसके ओपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है. सो सिमिलरली स्टूडेंट्स, AC बेस कब होगा, जब उसके ओपोजिट वर्टेक्स से, AC के ओपोजिट वर्टेक्स से अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो तो वो केस में AC बेस होगा. सो व्हेन AC कैन बी द बेस व्हेन द करस्पॉन्डिंग हाइट इज BE and when AB can be the base when the corresponding height will be उसके opposite vertex से if you draw perpendicular line, so when the corresponding height will be CF. so I hope ये concept clear है कि ट्रायंगल के कोई भी साइड को आप बेस ले सकते हो. बस हमें यह ध्यान देना है कि उस वक्त उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी और वो कैसे प्लॉट करते हैं, उसके ओपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है. नेक्स्ट ट्रायंगल टू अंडरस्टैंड बेटर हम एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लेते हैं. अब QR बेस कब होगा, सो एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल कैन बी द बेस. सो QR बेस हो सकता है, PR बेस हो सकता है एंड PQ बेस हो सकता है. QR बेस कब होगा, जब उसके ओपोजिट वर्टेक्स से इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन. तो स्टार्ट करते हैं. So this is the perpendicular line. So यहाँ पे I will extend QR such that it intersect this perpendicular line. So PQRS. So PS मेरी height है. So when I say QR as my base, then the corresponding height will be PS. उसके opposite vertex से perpendicular line draw करना है. आप बोलोगे सर ये तो ट्रायंगल के बाहर गया. ट्रायंगल के बाहर वो मैटर नहीं करता, हमें हाइट आइडेंटिफाई करना है. ये हमने हाइट आइडेंटिफाई करना है कि इसकी हाइट कितनी होगी. ओके वो ट्रायंगल के अंदर हो या ट्रायंगल के बाहर हो चलता है, हमने सिर्फ आइडेंटिफाई किया है, वो ट्रायंगल का पार्ट नहीं है बट उसकी हाइट इतनी है. नेक्स्ट PR बेस कब होगा, जब उसके ओपोजिट वर्टेक्स से इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन. सो PR बेस कब होगा, व्हेन द करस्पॉन्डिंग हाइट इज QT. एंड द लास्ट वन PQ बेस कब होगा, जब उसके ओपोजिट वर्टेक्स से इफ यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन
and I will extend this. So RU उसका corresponding height है. So I hope ये clear है कि how to find the base and height of a triangle. So ये concept समझना बहुत important है before we proceed with practice set 1.1. ये पार्ट जो है ट्रायंगल के बाहर है, तो आप बोलोगे ट्रायंगल के बाहर है, ट्रायंगल के बाहर कैसे हो सकता है उसकी हाइट? नहीं, वो हमने सिर्फ आइडेंटिफाई किया है कि इसकी इतनी हाइट होगी, वो पार्ट नहीं है उसका, सिर्फ डिनोट किया है हमने. सो नेक्स्ट, जब हम सम्स करेंगे सो कॉमन बेस आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे, बट कॉमन हाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ ट्रिक्स है. कौन से ट्रिक्स है? सो ट्रिक टू आइडेंटिफाई कॉमन हाइट्स. सो देयर आर 3 ट्रिक्स. पहला वाला ट्रिक है ट्रायंगल्स प्रेजेंट बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस. अगर मेरे ट्रायंगल्स, 2 ट्रायंगल्स दिए हुए रहेंगे और वो दोनों ट्रायंगल 2 पैरेलल लाइन के बीच में रहेंगे ना, तो उनकी हाइट कॉमन होती है. सो ये केस में एक मेरी लाइन है L एंड दूसरी लाइन मेरी M, एंड हियर लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M. दोनों लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल है एंड देयरफॉर इनके अंदर जो 2 ट्रायंगल्स है, एक है ट्रायंगल मेरा ABC, ये वाला ट्रायंगल, एंड सेकंड है मेरा ट्रायंगल PBD. ये दोनों ट्रायंगल 2 पैरेलल लाइंस के बीच में है, इसीलिए इनका हाइट कॉमन है. नेक्स्ट, ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स. सपोज 2 ट्रायंगल्स है और दोनों का वर्टेक्स कॉमन है, तो उनकी हाइट कॉमन होगी. ये केस में फर्स्ट वाला ट्रायंगल है ABD, ये वाला ट्रायंगल ABD, ये बेस है, उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया हुआ है. सो उसका बेस BD है एंड AD इज माई हाइट. सेकेंड ट्रायंगल जो है वो ADC है, उसका बेस DC है, ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है. सो दोनों इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC में हमारे पास वर्टेक्स A कॉमन है. वर्टेक्स A इज कॉमन. क्योंकि वर्टेक्स A कॉमन है, इसके लिए ये हमारा कॉमन हाइट का सम है. सम्स करेंगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको. एंड द लास्ट वन, 3 पॉइंट्स कोलिनियर. 2 ट्रायंगल्स दिए हुए रहेंगे और उनके बेसिस के पॉइंट्स अगर कोलिनियर है, उनके बेसिस के पॉइंट्स अगर कोलिनियर है, तो वो कॉमन हाइट का सम है. फिगर ऊपर बनाया हुआ है, यहां पे 3 पॉइंट्स है बेसिस में B, D एंड C, एंड ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड देयरफॉर ये हमारा कॉमन हाइट का सम है. सो आई होप क्लियर है. सो अच्छे से इसको रिवाइज कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोटबुक में नोट्स बना दो. स्टार्ट करते हैं विथ अवर प्रैक्टिस सेट 1.1. स्टार्ट करते हैं विथ अवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.1 एंड द क्वेश्चन इज बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5. बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6. फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल्स. क्या फाइंड करने को बोला है? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल्स. क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 से पूछा हुआ है, क्योंकि यहां पे हाइट दी गई है, बेस दिया गया है एंड हमें रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स पूछा हुआ है. सो हमें पता चल गया ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन है. अब प्रैक्टिस सेट 1.1 में टोटल हमारे पास 4 फॉर्मूलाज है. एक है हमारा A1/A2 इक्वल टू B1 इंटू H1/B2 इंटू H2. सेकेंड है हमारा A1/A2 इक्वल टू B1/B2. थर्ड है हमारा A1/A2 इक्वल टू H1/H2, दैट इज कॉमन हाइट, देन कॉमन बेस, एंड द लास्ट वन इज A1 इक्वल टू A2. अब ये 4 फॉर्मूलाज में हमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कैसे समझेगा? सो क्वेश्चन पढ़ के कहीं आपको कॉमन बेस दिखा? क्या क्वेश्चन में कहीं कॉमन बेस लिखा हुआ है? नहीं. क्या कहीं कॉमन हाइट लिखी हुई है? नहीं. क्या कहीं कॉमन बेस एंड कॉमन हाइट लिखा हुआ है? नहीं. एंड देयरफॉर कंडीशन 1, कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3 के जो फॉर्मूलाज थे वो यूज हम नहीं कर सकते. एंड देयरफॉर हमारे पास एक ही फॉर्मूला बचता है, वो है A1/A2 इक्वल टू B1 इंटू H1/B2 इंटू H2, और वो फॉर्मूला से हम स्टार्ट करते हैं. सो फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम सम को स्टार्ट करते हैं. अब
हमारे पास दो ट्रायंगल्स होने चाहिए और दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज दिए हुए होने चाहिए। सो क्या हमें दो वैल्यूज दिए हुए हैं? चलो देखते हैं क्वेश्चन को। बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। बेस दिया हुआ है, ये रहा, ये हमारा बेस है। बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। यस, एक बेस दिया हुआ है 9 और हाइट दी हुई है 5। बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। अनदर ट्रायंगल का बेस 10 है एंड हाइट 6 है। यस, ऑल फोर वैल्यूज आर गिवन एंड देयरफॉर हम a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2 फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट एंड बिफोर वी अप्लाई दैट फॉर्मूला, क्या हमें यहां पे ऐसा मेंशन किया है कि b1 उसका बेस है, b2 उसका बेस है, h1 नहीं, हमें इन जनरल दिया गया है कि बेस एंड हाइट। सो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में मेंशन करना पड़ेगा, हमें कंसिडर करना पड़ेगा टू ट्रायंगल्स, उसके करस्पॉन्डिंग बेसेस को लेना पड़ेगा, उसके करस्पॉन्डिंग हाइट्स को लेना पड़ेगा, फिर जाके हम सम को सॉल्व कर सकते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट विद द सम, लेट अस फर्स्ट कंसिडर। सो लेट a1 and a2 be the areas of two triangles a1 और a2 दो ट्रायंगल के एरिया को ले लिया मैंने। नाउ लेट b1 and b2 be their bases and h1 and h2 be their corresponding heights। करस्पॉन्डिंग वर्ड लिखना इंपॉर्टेंट है। करस्पॉन्डिंग, मैचिंग हाइट्स, मतलब जब आप a1 लोगे तब उसका बेस आएगा b1 एंड हाइट आएगी h1, तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग वर्ड लिखना जरूरी है। सो कर दिया हमने सबको, वी हैव कंसिडर, सब ले लिया एंड देयरफॉर नाउ वी कैन टेक एज माय बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड देयरफॉर b1 इक्वल टू 9 एंड h1 इज 5, b2 इक्वल टू 10 एंड h2 इक्वल टू 6। सो सारे वैल्यूज ले लिए हमने, जो क्वेश्चन में दिया होता उसको मैंने अजम्पशन किया एंड देन आई हैव टेकन द वैल्यूज। स्टार्ट करते हैं विथ फॉर्मूला पुट करते हैं। देयरफॉर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2 एंड वेन एवर यू यूज दिस फॉर्मूला हमें एक रीजन मेंशन करना होता है। क्या था वो रीजन? जो बहुत ही सिंपल था। क्या था? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, the ratio of areas of two triangles is equal to the ratio of product of bases and their corresponding heights. So it is very important to mention the reason या फिर आपका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा। So substitute करते विथ वैल्यूज। So therefore a1 upon a2 equal to b1. What is b1? It is 9. h1 is 5. b2 is 10 and h2 is 6. सो अगर रेड्यूस होता है, अगर कट होता है तो कट करेंगे। सो कट हो रहा है, यस। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। हम a1 अपॉन a2 इक्वल टू 3 अपॉन 4 विच इज अवर फाइनल आंसर। सो आई होप इट्स क्लियर। बट ये हमारा फाइनल आंसर है, बट हमारा आंसर इस फॉर्म में नहीं पूछा हुआ है। हमें क्या पूछा है? फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल्स। सो हमें आंसर भी उसी के फॉर्म में लिखना है कि देयरफॉर द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल्स
is 3:4. So this is our final answer. So I hope it's clear. कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. प्रैक्टिस सेट 1.1 एंड द क्वेश्चन इज इन फिगर 1.13 BC इज परपेंडिकुलर टू AB. सो फिगर मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे इन विच BC इज परपेंडिकुलर टू AB के साथ वो परपेंडिकुलर है. ये हमारी परपेंडिकुलर की साइन है. AD इज परपेंडिकुलर टू AB. सो AD इज परपेंडिकुलर टू AB. BC is 4. This is my BC. This is 4, which is given to us. AD is 8. Then find area of triangle ABC upon area of triangle ADB. अब ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको कैसे समझेगा कि हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 है. सो द फर्स्ट वे टू आइडेंटिफाई इज, या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा या तो कॉमन बेस है, या तो कॉमन हाइट है, या तो कॉमन बेस एंड हाइट है. बट सपोज क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है. सो अभी के लिए आप ये समझो कि दोनों ट्रायंगल जो है वो आपको अलग अलग सेपरेट करके नहीं मिलेंगे. दोनों ट्रायंगल जॉइंट हो गए और दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा. सो यहां पे हमारा ये जो दो ट्रायंगल है, एक है मेरा ट्रायंगल ABC, ये वाला ABC, और दूसरा ट्रायंगल है मेरा ABD. ये दोनों में एक पार्ट कॉमन है, वो है AB. सो AB इज कॉमन दोनों में. सो ये कुछ ना कुछ कॉमन है, या तो कॉमन बेस है या तो कॉमन हाइट है. सो दिस पार्ट इज कॉमन एंड कैन आई से दैट इज माई बेस, बिकॉज एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल कैन बी द बेस. ट्रायंगल का कोई भी साइड बेस हो सकता है, फिर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हम फाइंड करते हैं. सो ये केस में आई विल कंसिडर AB एज माई बेस. ये वाला जो ट्रायंगल है ऊपर वाला ABC, उसका बेस AB है, और उसकी हाइट फाइंड करने के लिए उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाता है. सो अगर AB मेरा बेस है तो उसका ऑपोजिट वर्टेक्स C है, यहां से परपेंडिकुलर लाइन, ये मेरी हाइट है. और इन ट्रायंगल ABD बेस क्या है? एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल कैन बी द बेस. सो आई विल कंसिडर AB एज माई बेस. तो उसका ऑपोजिट वर्टेक्स से D एंड दिस इज माई हाइट. D से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया एंड दिस बिकम्स माई हाइट. सो फ्रॉम दिस अब मुझे पता चल गया ये मेरा प्रैक्टिस सेट 1.1 का सम है, जिसमें हमें लेना है कॉमन बेस. सो कॉमन बेस हमारा कंडीशन 2 था. ओके, सो जब कॉमन बेस होता है तो क्या लेते हैं हम? A1 अपॉन A2 इक्वल टू H1 अपॉन H2, जब बेस कॉमन होता है तब. सो स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC upon area of triangle ADB equal to, here in this particular case base are equal, so height 1 upon height 2 लिखते थे हम. so what is height 1? ये वाला मेरा फर्स्ट ट्रायंगल है ABC, so height is BC upon AD. रीजन क्या देंगे? bases are equal, hence areas proportional to heights. रीजन मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टार्ट करेंगे BC. द वैल्यू ऑफ BC इज 4 एंड द वैल्यू ऑफ AD इज 8. रेड्यूस करेंगे, अगर रेड्यूस होता है तो yes it is possible. 4 1s are 4, 4 2s are 8, and therefore our final answer is, therefore area of triangle ABC upon area of triangle ADB equal to, it is 1 upon 2, which is our final answer. वही पूछा है. सी सो उसी के फॉर्म में हमने लिख दिया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम. सो जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हम एक ऑर्डर के साथ चल रहे, मीन्स लाइन से नहीं करने वाले हम सारे सम्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नहीं. फर्स्ट मैंने फर्स्ट फॉर्मूला पे लिया, फिर कॉमन बेस हाइट कॉमन बेस पे हमने सम लिए. सो सिमिलर सम्स पहले लेंगे, देन रिमेनिंग सम्स लेंगे, बट 1 by 1 पूरी एक्सरसाइज हम करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं विथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. इन एडजॉइनिंग फिगर PQ is perpendicular to BC. PQ is perpendicular to BC and AD is
perpendicular to BC, and they have told us to find the ratio of area of triangle PQB upon PBC, area of triangle PBC upon ABC, area of triangle ABC upon ADC, and the last one, area of triangle ADC upon PQC. So let us one by one find the ratio of areas of these triangles. अब अगेन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि ये कौन सी एक्सरसाइज है सम है. आप बोल मीन्स यू मस्ट बी थिंकिंग मैं बार बार ये क्यों बता रहा हूँ कि कौन सी एक्सरसाइज है सम है. बिकॉज जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1.2 के अंदर भी ट्रायंगल्स है, एक्सरसाइज 1.3 के अंदर भी ट्रायंगल्स है, एक्सरसाइज 1.4 के अंदर भी ट्रायंगल्स है. फिर सारे ट्रायंगल मिक्स हो जाएंगे, हमें समझ में नहीं आएगा कि हमारा ये जो सम है वो कौन सी एक्सरसाइज में से पूछा हुआ है. सो अभी से हम आइडेंटिफाई करना सीख लेते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारा ये जो क्वेश्चन है वो कौन से एक्सरसाइज में से पूछा हुआ है. सो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, सो ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 से है. ये तो अभी हम बिकॉज फर्स्ट एक्सरसाइज से हम इजीली बता सकते हैं कि हमारा एक्सरसाइज 1.1 से. जब हम आगे बढ़ेंगे तभी इजीली हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये उस एक्सरसाइज का सम नहीं है. अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं. वाइल डूइंग द सम्स एक एक करके जब हम रेशियोज लेंगे तब मैं आपको बता दूंगा. ओके, सो स्टार्ट करते विद अवर फर्स्ट वन, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB. सो इस पर्टिकुलर फिगर में PQB विच इज अवर ट्रायंगल PQB, ये वाला PQB, this triangle PQ and B, this triangle, and PBC. PBC हमारा कौन सा ट्रायंगल है? PBC, P, B and C. This is the second triangle. The first triangle is PQB, the second triangle is PBC. अब इसको सॉल्व करते हैं हम. ये हमारा कौन सा सम है? या कॉमन बेस है, या कॉमन हाइट है, या कॉमन बेस एंड हाइट है, या कुछ भी कॉमन नहीं है. फर्स्ट ट्रायंगल का बेस फाइंड करता हूं मैं. फर्स्ट ट्रायंगल PQB, एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल कैन बी द बेस. सो QB मेरा बेस है. अब उसकी हाइट कैसे फाइंड करेंगे? ओपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे. सो ओपोजिट वर्टेक्स P से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो PQ मेरी हाइट हो गई. So in triangle PQB, BQ is my base and PQ is my height. चलो इतना तो क्लियर हो गया. आगे बढ़ते हैं. PBC, 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 ये जो ट्रायंगल है PBC, उसका बेस क्या है? Yes, right. BC is my base because any side of a triangle can be the base. ये हमें स्टेटमेंट याद रखना है. Any side of a triangle can be the base, so BC मेरा बेस है. अब उसकी हाइट क्या होगी? उसके ओपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ओपोजिट वर्टेक्स P है, P से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, सो PQ इज माय हाइट. सो जो फर्स्ट ट्रायंगल था PQB, उसका भी हाइट PQ था एंड PBC का भी हाइट PQ है, एंड देयरफॉर ये हमारा कंडीशन 1 है, द हाइट्स आर इक्वल. सो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 का सम है. अगर एक क्वेश्चन 1.1 से है तो ऑब्वियसली सारे क्वेश्चंस, इसके जो सब क्वेश्चंस है सारे 1.1 से ही है. सो ये हाइट्स आर इक्वल वाला सम है. सो इफ द हाइट्स आर इक्वल देन बेस 1 अपॉन बेस 2. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC. सो इफ द हाइट्स आर इक्वल then the ratio of the areas is proportional to bases. So base क्या हो जाएगा? PQB, इसका बेस है BQ एंड PBC का बेस है BC. रीजन मेंशन कर देंगे. हाइट्स आर इक्वल, hence areas proportional to bases. सेकेंड क्वेश्चन लेते. एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. स्टार्ट करते. PBC, 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 any side of a triangle can be the base and therefore BC is my base.
एंड उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, सो पी क्यू मेरी हाइट हो जाएगी. सो बी सी इज माई बेस एंड पी क्यू इज माई हाइट. नेक्स्ट ए बी सी. ए बी सी, ए बी सी, एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल कैन बी द बेस एंड देयरफॉर बी सी इज माई बेस. एंड उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो एडी इज माई हाइट. सो प्रीवियस ये जो ट्रायंगल था पीबीसी, उसका बेस बीसी था और एबीसी का भी बेस बीसी है. सो यहां पे दोनों का बेस बीसी है, इसके लिए ये कॉमन बेस का सम है. कंडीशन 2. सो इफ द बेसेस आर इक्वल देन द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल इज प्रोपोर्शनल टू करस्पॉन्डिंग हाइट्स. हाइट लिखेंगे. सो पीबीसी का हाइट है पी क्यू एंड एबीसी का हाइट है एडी. क्या लिखेंगे? बेसेस आर इक्वल हेंस एरियाज प्रोपोर्शनल टू हाइट्स. सो आई होप इट्स क्लियर. कंटिन्यू करते विथ नेक्स्ट वन. ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी. ए बी सी, ए बी सी. सो आई कैन से बी सी इज माई बेस एंड ए डी इज माई हाइट. एंड ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी, डी सी इज माई बेस और उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, सो एडी इज माई हाइट. सो फॉर ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी के लिए भी एडी हाइट है एंड ए डी सी के लिए भी एडी हाइट है. सो यहां पे हाइट आर इक्वल मीन्स कॉमन हाइट का सम है ये. दैट इज कंडीशन 1, अगर आपको याद होगा तो. सो 2-3 बार वीडियो को अच्छे से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा. सो सोल्यूशन लिखते हैं. सो सिंस देयर हाइट्स आर इक्वल, सो बेस 1 अपॉन बेस 2. सो एबीसी का बेस है बीसी एंड एडीसी का बेस है डीसी. दैट इज हाइट्स आर इक्वल हेंस एरियाज proportional to bases. So I hope it's clear. Continue करते with our last question, that is 4th one, and that is area of triangle ADC upon area of triangle PQC. ADC का बेस है DC and the corresponding height is AD. PQC का बेस है QC and the corresponding height is PQ. ऊपर वाला जो ट्रायंगल है ADC उसकी हाइट है AD एंड इसकी हाइट है PQ. सो कुछ कॉमन नहीं है, एक बड़ी एक छोटी है, सो कुछ कॉमन नहीं है. अब बेस की बात करें तो ADC का बेस है DC, इतना सा बेस है उसका. एंड PQC का बेस इतना है, ADC का बेस इतना सा है और PQC का बेस इतना है. एक का बेस छोटा है, न्यूमरेटर में जो ट्रायंगल है उसका बेस छोटा है एंड डिनोमिनेटर में जो ट्रायंगल है उसका बेस बड़ा है. सो कुछ कॉमन नहीं है. कॉमन किसको बोलते हैं? जिसका साइज सेम होता है, जिसका वैल्यू सेम होता है. सो एक छोटा एक बड़ा है एंड देयरफॉर कुछ कॉमन नहीं है. मींस यहां पे हाइट भी कॉमन नहीं है, बेस भी कॉमन नहीं है. सो कौन सा अप्लाई करेंगे? दैट इज A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2. तो स्टार्ट करते हैं. ADC का बेस है DC, द करस्पॉन्डिंग हाइट इज AD एंड PQC का बेस है QC, द करस्पॉन्डिंग हाइट इज PQ. सो व्हेनेवर वी यूज दिस फॉर्मूला, इसके लिए क्या रीजन देना है हमें पता है, इसका भी पता है, इसका भी पता है. अब इसके टाइम पे क्या लिखना है याद है? हाँ, the ratio of areas of two triangles is equal to the ratio of, कैसे लिखेंगे?
the ratio of areas of two triangle is equal to the ratio of, multiply ये बीच में, so product of bases and heights नहीं, and they are corresponding heights. So I hope it's clear. Continue करते with next question. Number 4 of practice set 1.1. In adjoining figure, AP is perpendicular to BC. So AP is perpendicular to BC. Okay. And AD is parallel to BC. AD is parallel to BC. दोनों लाइन एक दूसरे के साथ parallel है. Find area of triangle ABC ratio area of triangle BCD. अब ये कौन सी एक्सरसाइज का सम है? सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा. सो इट इज फ्रॉम एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.1. कैसे पता चला? सो अगर आप दोनों ट्रायंगल्स को देखो, अगर ABC एंड BCD दोनों का जो बेस है, बेस BC है. ABC का बेस BC है एंड BCD का भी बेस BC है, तो ये कॉमन बेस का सम है. सो ये मेरा प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन है. नेक्स्ट आगे हम सोचते, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स दो पैरेलल लाइन के बीच में है. सी हियर AD इज पैरेलल टू BC. ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल है एंड दोनों ट्रायंगल्स दो पैरेलल लाइंस के बीच में है. एंड देयरफॉर हमने ये प्रीवियस देखा है कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर में कि अगर दो ट्रायंगल्स दो पैरेलल लाइंस के बीच में होते तो उनकी हाइट्स इक्वल होती है. सो इनके हाइट्स भी इक्वल है एंड बेसेस भी इक्वल है. सो ये हमारा कंडीशन 3 है. राइट. सो स्टार्ट करते हैं. Since triangle ABC and triangle BCD are present between two parallel lines, hence their heights are equal. सो ये दोनों ट्रायंगल के हाइट्स इक्वल है. सो सिंस ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD आर प्रेजेंट बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड देयर हाइट्स आर इक्वल. अब बात करें बेस. सिंस ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD हैव कॉमन बेस. क्या है बेस? कॉमन बेस, दैट इज BC. देयरफॉर अगर हाइट्स भी इक्वल है, मीन्स हाइट भी कॉमन है एंड बेस भी कॉमन है, देन कंडीशन 3 दैट द एरियाज आर इक्वल एंड देयरफॉर आई कैन से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD. सो बोथ द एरियाज आर इक्वल. बट हमें क्या पूछा है? हमें उसका रेशियो पूछा है. तो चलो रेशियो निकालते. सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. आई विल राइट एज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम. नहीं समझा? देखते. दिस कैन बी रिटन एज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन 1 एंड दिस कैन बी रिटन एज एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD अपॉन 1. अब इसको समझो उस तरीके से, लिखने की जरूरत नहीं है. बट कहना ऐसे डिनोमिनेटर में 1 प्रेजेंट है. अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं ये केस में, सो 1 इस तरफ चले जाएगा. दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD विल कम इन द डिनोमिनेटर. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल का इक्वल. इसके डिनोमिनेटर में 1 पहले से था एंड दिस 1 जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा.
सो यहां लिखने की जरूरत नहीं है। आई होप ये क्लियर आपको समझ में आया। अब मैं निकाल देता हूं यहां से, एंड देयरफॉर दिस कैन बी रिटन एज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल टू 1:1, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। आई होप इट्स क्लियर। कंटिन्यू करते विद अवर लास्ट क्वेश्चन of this particular exercise, that is question number 3, and that is in adjoining figure 1.14 segment PS is perpendicular to RQ. PS is perpendicular to RQ. QT is perpendicular to PR. If RQ is 6, PS is 6, PS is 6, PR is 12. So this is my PR. So if PR is 12, so I will write it over here. यहां नहीं लिख सकता, बिकॉज अगर मैं यहां 12 लिख दूंगा सो ये लगेगा RT 12 है। सो बट मेरा PR 12 है, सो आई विल राइट इट ओवर हियर एंड आई विल मेंशन इट। इट इज फ्रॉम ओके, एंड फाइंड QT. दिस इज माई QT. आई नीड टू फाइंड दिस। सो ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। अब ये कौन सी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन है, सबसे पहले ये डाउट है। सो कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप कि कौन सी एक्सरसाइज का सम है? सो यहाँ पे तो कोई एरिया ऑफ ट्रायंगल भी नहीं दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, तो हम सोच सकते थे एक्सरसाइज 1.1 से ये क्वेश्चन है, बिकॉज कॉमन बेस, कॉमन हाइट, कॉमन बेस एंड हाइट हमारा एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.1 है। बट ये हमारा उस प्रैक्टिस सेट का तो लग ही नहीं रहा है। सो इसको कैसे सॉल्व करना है? सो ये प्रैक्टिस सेट 1.1 का ही क्वेश्चन है, बट हमें कॉमन बेस है उस फॉर्मूला से नहीं करना है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल से इसको सॉल्व करना है। अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो जब हम रिमेनिंग एक्सरसाइज करेंगे तो ये क्वेश्चन रिमेनिंग एक्सरसाइज में से नहीं है, वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो व्हेन यू विल डू द रिमेनिंग सम्स ऑफ नेक्स्ट एक्सरसाइज। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लेते हैं हमारी ज्योमेट्री टेक्स्ट बुक। सो ये जो हमारा ज्योमेट्री टेक्स्ट बुक है, ज्योमेट्रिकल इसका फिगर है रेक्टेंगल। अब इसका जो एरिया है, फ्रंट का जो एरिया है, इफ आई कीप द टेक्स्ट बुक वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, उसका एरिया सेम रहने वाला है। इफ आई कीप लाइक दिस, सो ये हो जाएगा मेरा लेंथ एंड ये हो जाएगी ब्रेथ, और अगर मुझे इसका एरिया फाइंड करना है सो इट विल बिकम लेंथ इनटू ब्रेथ। बट सपोज इसको मैं वर्टिकली रखता हूं, सो दिस विल बिकम माई लेंथ एंड दिस विल बिकम माई ब्रेथ, एंड आई विल फाइंड द एरिया बाय द फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, और मेरा वैल्यू सेम आने वाला है, मेरा एरिया सेम आने वाला है। इट मीन्स ये जो मेरा ज्योमेट्रिकल फिगर है रेक्टेंगल, इफ आई होल्ड इट लाइक दिस और लाइक दिस, मेरा एरिया चेंज नहीं होगा। सो स्टार्ट करते ये कॉन्सेप्ट को लेके, इस सम को हम सॉल्व करते फर्दर कि कैसे QT फाइंड करेंगे। सो सबसे पहले लेट मी कंसीडर दिस ट्रायंगल, से ट्रायंगल PQR, जो मेरा ट्रायंगल PQR है। लेट मी शेड इट, ये मेरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, PQR, ये जो ट्रायंगल है। इसका बेस क्या है? RQ, बिकॉज एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल कैन बी द बेस, ये स्टेटमेंट याद रखना है। और उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी? उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, सो PS उसकी हाइट हो गई। सो लेट मी राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू हाफ इंटू बेस इज RQ and the corresponding height is PS. So half into 6 into 6. I will name it as my equation number 1. अब ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR, उसका बेस मैंने क्या लिखा है? RQ, और उसकी हाइट क्या है? PS. सो हम लिखेंगे कंसिडर RQ as base and PS as height.
देयरफॉर मेंशन कर देंगे इन ट्रायंगल PQR। फर्दर सॉल्व करते हैं। अब इसी ट्रायंगल में नाउ कंसीडर PR को मैं बेस लेता हूं। PR, आप बोलोगे PR को बेस कैसे ले सकते हो? बिकॉज एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल कैन बी द बेस। सो कंसीडर PR एज बेस एंड उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी? अगर PR बेस है तो उसकी हाइट कैसे फाइंड करेंगे? उसके ओपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो QT उसकी हाइट हो जाएगी। एंड therefore area of triangle PQR equal to half into base is PR and height is QT. Therefore area of triangle PQR equal to half into 12 into QT. This is my equation number 2. Now area of triangle PQR in equation number 1 is half into 6 into 6 and area of triangle PQR in equation number 2 is half into 12 into QT. Now दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। फर्क क्या है? इन आवर फर्स्ट केस, ये केस में मैंने इसको बेस लिया है एंड ये उसकी हाइट हो गई, एंड सेकेंड केस में इसको बेस लिया, इसकी हाइट हो गई, QT उसकी हाइट हो गई। इन द सेकेंड केस PR मेरा बेस है एंड QT उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट हो गई। सो बेस फर्स्ट केस में अलग था, सेकंड केस में अलग है, हाइट फर्स्ट केस में अलग था, सेकंड केस में अलग है, बट ट्रायंगल तो वही है। सो उसका एरिया तो सेम रहने वाला है। मैंने आपको एग्जांपल बताया रेक्टेंगल का। सो ये केस में उसका एरिया सेम है एंड देयरफॉर कैन आई से हाफ इंटू 6 इंटू 6 इक्वल टू हाफ इंटू 12 इंटू QT। कहां से पता चला? फ्रॉम 1 and 2। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्यों मैंने दोनों को इक्वेट किया? दिस इज इक्वल टू दिस। क्यों? बिकॉज दोनों का एरिया सेम है। मैंने टेक्स्ट बुक लेके आपको समझाया कि आप हॉरिजॉन्टली लिखो या वर्टिकली लो, उसका एरिया चेंज नहीं होने वाला है। सो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, दिस विल गेट रेड्यूस्ड, बीच में इक्वल का साइन है, सो वी कैन रेड्यूस दिस। ओके, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, सो हाफ ऑफ रेड्यूस हो गया। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, further 2 1s are 2, 2 3s are 6 and therefore QT equal to 3। वही हमें पूछा था, find QT and we got the value of QT। So this was our last sum of practice set 1.1।